आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है माउंट कॉनिफर स्वीट्स एंड स्पा, 5 डॉक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिंग मॉल, दार्जिलिङ। संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार, जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। शंकर घोष होंगे सिलीगुड़ी में भाजपा उम्मीदवार। राजनीतिक मैदान में गुरु शिष्य का होगा मुकाबला। भाजपा ने सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से हाल ही में CPM छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले शंकर घोष को मैदान में उतारा है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री देवर्षि रॉय चौधरी ने भाजपा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। दिलचस्प बात यह है कि इस बार शंकर घोष अपने राजनीतिक गुरु अशोक भट्टाचार्य के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे। अशोक भट्टाचार्य सिलीगुड़ी के वर्तमान विधायक और सिलीगुड़ी के नगर प्रशासक भी है। वे राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी है। जिस व्यक्ति से शंकर घोष ने राजनीति का ABC सीखा, आज उन्हीं के खिलाफ वे चुनाव मैदान में है। अशोक भट्टाचार्य वाम मोर्चा समर्थित संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार है और शंकर घोष भाजपा के। अब ये देखना है कि जनता गुरु को चुनती है या उनके शिष्य को। প্রথমত আমিও আপনাদের মাধ্যমে শুনেছি, আমি সবে বাড়ি এলাম, তবে আপনাদের মুখ থেকে শোনা সংবাদকে সামনে রেখে আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মহাশয়কে। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ মহাশয়কে। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই ভারতের তথা বিশ্বের সর্ববৃহৎ পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি JP নাড্ডা সাহেব মহাশয়কে। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই রাজ্য বিজেপির লড়াকু নেতা তথা সভাপতি সাংসদ শ্রী দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে। ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের শিলিগুড়ি জেলার সাংগঠনিক সভাপতি শ্রী প্রবীণ আগরওয়াল মহাশয়কে এবং জেলার সাংগঠনিক জেলার প্রত্যেক বিজেপির সদস্য যারা রয়েছেন, সমর্থক যারা রয়েছেন তাদেরকে। এবং সবার শেষে আমি যার কথা অবশ্যই আরেকবার আপনাদের সামনে বলবো, সেটা হচ্ছে আমাদের মাননীয় সাংসদ শ্রী রাজু বিচ মহাশয়। তার বন্ধুত্বের হাত আজকে যে আমাকে এখানে এনে দাঁড় করাবে সেটা আমি চিন্তা করিনি, ফলে আমি তাকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, প্রথম কথা হচ্ছে CPM-এ কোনো ডানাত বলে কিছু জিনিস থাকে না, গুরু শিষ্য বলে কোনো জিনিস থাকে না, আর কি একটা বলে ছায়া সঙ্গী বলে কোনো জিনিস নাই। বিজেপি এতদিন পর্যন্ত প্রার্থী পদ ঘোষণা করেনি, বিজেপি একটা প্রার্থী পদ ঘোষণা করেছে, তাদের প্রার্থী তারাই ঠিক করেছে। তো ওই ব্যাপারে আমার কি মন্তব্য আছে? নো কমেন্টস অ্যাট অল। কারণটা হচ্ছে এটা মনে রাখতে হবে, ওম প্রকাশ মিশ্র যখন ক্যান্ডিডেট হয়েছে আমি কিছু মন্তব্য করেছিলাম? গত বছর বাইচুং ভুটিয়া ক্যান্ডিডেট হয়েছিল, আমি কোনো মন্তব্য করেছি? আমি কোনোই মন্তব্য করিনি। লড়াই আমাদের বিজেপির বিরুদ্ধে, লড়াই আমাদের তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সেই লড়াই করে গতবার যত ভোটে আমরা জিতেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি ভোটেই ব্যবধানেই আমরা ভোটে জিতব। এই হচ্ছে কথা। কতটা চ্যালেঞ্জের? কোনো চ্যালেঞ্জই মনে করি না। আবার আমার একই কথা, শুভেন্দু অধিকারী তো মমতা ব্যানার্জির ছিল, তখন এই কথাটা এসেছিল, কেউ বলছে তাকে। তারপরে কিনা ওই মিহির গোস্বামী, সেও তো একই রকম ছিল, তাহলে কী হলো তাতে? বলছিল কেউ আমার কী তাতে কী আছে তাতে? ওটা নিয়ে কোনো নো কথাই হবে না, যে নেই আমাদের সঙ্গে নেই তো নেই। यात्रियों से लदी बस पलटी, 4 घायल। मोटरसाइकिल चालक को बचाने के दौरान हुआ हादसा। सिलीगुड़ी के निकट खोड़ीबाड़ी इलाके में एशियन हाईवे पर गुरुवार को यात्रियों से लदी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे होटल से टकराते हुए जा पलटी। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर हालतों का जायजा ले रही है। घटना के बाद सड़क पर कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। जानकारी के अनुसार खोड़ीबाड़ी ब्लॉक के पानी टंकी इलाके में यात्रियों से लदी बस मोटरसाइकिल को बचाने के दौरान अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक होटल में जोरदार धक्का मारते हुए दूर जा पलटी। स्थानीय लोगों के अनुसार एक यात्री बस सिलीगुड़ी की ओर जा रही थी, जबकि एक अन्य बस सिलीगुड़ी से खोड़ीबाड़ी आ रही थी। इसी दौरान बस के पीछे तेज रफ्तार से आ रहे बाइक सवार को बचाने के दौरान बस अनियंत्रित होकर होटल में जा घुसी।
इस हादसे में 3 स्थानीय लोग व बस में सवार एक व्यक्ति तथा मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू कर दिया। घायलों को नक्सलबाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अधिक बिगड़ने पर उन्हें उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। घटना को लेकर इस रूट पर काफी देर तक यातायात बाधित रहा। पानी टंकी आउटपोस्ट की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को नियंत्रित किया। অ্যাক্সিডেন্ট হতে এদিক থেকে একটা বাস আসতেছিল, একটা এদিক থেকে আসতেছিল, মাঝখানে একটা বাইক ছিল, সেই বাইকটা তো ওই বাইকটাকে বাঁচাতে গিয়ে আমার দোকানে ঢোকায় দিল। এর মধ্যে 2 জন আহত, 3 জন মানে পায়ে ব্যথা লাগছে, কেউ হাতে লাগছে, 2টা ছাগল মারা গেছে, আমার বোর পায়ে লাগছে। এটাই তো, আমার দোকানটা পুরোটাই শেষ, যা ছিল দোকানের মালপত্র সবই শেষ। टीएमसी के घोषणा पत्र में दीदी के 10 अंगीकार के बारे में रंजन सरकार ने दी जानकारी। गुरुवार को सिलीगुड़ी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति रंजन सरकार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा घोषणा पत्र में जारी किए गए 10 कार्यक्रमों के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लिए मुख्यमंत्री ने अलग अलग घोषणाएं की है, जो भविष्य में सभी के लिए लाभकारी साबित होगी। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। दीदी के 10 अंगीकार में असंख्य सुअवसर समृद्ध बंगाल की बात कही गई है, तो प्रत्येक घर न्यूनतम मासिक आय का भी जिक्र किया गया है। आर्थिक सुअवसर, सबल युवा के साथ बंगाल में सभी के लिए निश्चित आहार उत्पादन वृद्धि, सुखी किसान, उद्यमशील बंगाल, तो बेहतर स्वस्थ व्यवस्था, स्वस्थ बंगाल के अलावा अग्रणी रहने के लिए शिक्षित बंगाल, सभी के सिर पर मिले छाव, हर एक घर को बिजली एवं सड़क और पेयजल का वादा किया गया है। समृद्ध बंगाल की परिकल्पना ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र में असंख्य सुअवसर और समृद्ध बंगाल की बात कही गई है। टीएमसी ने कहा कि बंगाल को देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में काम करेंगे। तब 12.5 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी तथा प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक होगी। সেই সকল সম্প্রদায় যেমন মাহিষ্য, তিলি, তামুল, সাহা যারা ওবিসি হিসাবে স্বীকৃত নয় কিন্তু মণ্ডল কমিশনের প্রস্তাবিত তালিকাভুক্ত, সেই সম্প্রদায়গুলির ওবিসি স্ট্যাটাস পরীক্ষা ও প্রস্তাব করার জন্য একটি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন করব, যাতে তারা ওবিসি তালিকার সকলে সুবিধা পেতে পারে। মাহিষ্য, তিলি, তামুল, সাহা, এটাকে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। এরা ওবিসি অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদেরকে আমরা ওবিসি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আমাদের টিম গঠিত হয়েছে। এর সাথে মালদা অঞ্চলে বসবাসকারী কিষাণ জাতির মানুষদের দীর্ঘদিন ধরে এসসি হিসাবে নিবন্ধীকরণের দাবি পূরণ করা হবে। মাহাতো সম্প্রদায়কে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করেছেন এবং সেই দাবিকে আরও জোরালো করবেন তিনি। পাহাড়ের ভাই বোনদের জন্য, অর্থাৎ আমাদের জেলায়, আমাদের পাহাড়ে যারা বসবাস করেন সেই সমস্ত ভাই বোনেদের জন্য আমাদের নেত্রী চিন্তা করেছেন। বহু প্রকল্প তিনি ইতিমধ্যেই পাহাড়ের জন্য তিনি 10 বছরে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আরও কিছু প্রকল্প আমরা এই অঞ্চলে যারা দীর্ঘদিন ধরে শান্তি ও উন্নয়নের পাশাপাশি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের পৌঁছানোর জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সহ পাহাড়ের মূল অংশীদার এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করব। আমরা কিন্তু পাহাড়ে এবং সমতল মিলিয়ে আমাদের জেলায় গত 12 বছর ধরে আমাদের কোনো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি পাইনি। सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव द बीएसएनएल शीर्षक पर सेमिनार आयोजित, सरकार से 4G शुरू करने का अनुरोध। SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से गुरुवार को सिलीगुड़ी स्थित बीएसएनएल के प्रधान कार्यालय में सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव द बीएसएनएल शीर्षक पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में भारत सरकार के सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी में 4G लॉन्च करने की मांग की गई। सेमिनार में उपस्थित SC/ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव ND राम ने कहा कि बीएसएनएल पिछले कई वर्षों से लोगों की सेवा कर रहा है। उन्होंने कहा विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं व अन्य समस्याओं में बीएसएनएल निरंतर लोगों की सेवा करता रहा है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से बीएसएनएल द्वारा 4G लॉन्च
किए जाने की मांग की। सेमिनार में भारत संचार निगम लिमिटेड के जिला और राज्य स्तर के कर्मचारी उपस्थित थे। आज का जो ये सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार को यह संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर संविधान को बचाना है, अगर संविधान बचाने की मंशा है और उस इरादे के साथ चल रहे हैं कि संविधान के साथ आप चल रहे हैं, संविधान की गरिमा मर्यादा को अगर बनाए रखना है तो BSNL को बनाए रखना होगा। और BSNL को बनाए रखने के लिए सबसे पहली बात है कि जितना जल्दी हो सके सरकार 4G स्पेक्ट्रम इसको प्रोवाइड करे, ताकि हमारे जो देश के नागरिक हैं उनकी जो इच्छा है कि हमें BSNL एक वैल्यू जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है, उनको हम सही सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। मुझे नहीं लगता कि सरकार क्यों नहीं 4G स्पेक्ट्रम अलॉट कर रही है। सरकार की एक खुद कंपनी है, BSNL भारत सरकार की कंपनी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का कोई अड़चन है। सरकार चाहे तो इसको विदिन नो टाइम इसको अलॉट कर सकती है। संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार डॉक्टर सुखविलास वर्मा के समर्थन में रोड शो करेंगे विमान बासु। वाम मोर्चा अध्यक्ष विमान बासु वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुखविलास वर्मा के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे और वे जलपाईगुड़ी आ रहे हैं। 25 मार्च को विमान बासु जलपाईगुड़ी में संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार डॉक्टर सुखविलास वर्मा के समर्थन में रोड शो करेंगे। जलपाईगुड़ी में गुरुवार को सीपीएम के जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में वाम मोर्चा के संयोजक सलील आचार्य ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बासु संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार डॉक्टर सुखविलास वर्मा के समर्थन में जलपाईगुड़ी में एक रोड शो करेंगे। इस अवसर पर जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निर्मल घोष दस्तीदार ने युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार डॉक्टर सुखविलास वर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाए गए अभियान को विपक्षी पार्टियों की साजिश करार दिया। একটা যুবগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র একাংশের অভিমান হয়েছিল, খুব বলবো না, ওরা আমাদের সঙ্গে আছে, ওরা তৃণমূলে যায়নি, বিজেপিতে যায়নি, অন্য কোনো দলে যায়নি, এখনো আমাদের সঙ্গে আছে। যে অভিমানটা ওদের ছিল সেই অভিমানটা 90% কেটে গেছে। আগামীকাল থেকে দেখবেন সকলে একসঙ্গে মিছিল মিটিং করছে। ঠিক আছে, অন্তত হতে শেয়ারের গোষ্ঠীর ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। শেয়ারের গোষ্ঠীর ব্যাপারে আপনারা তদন্ত করে দেখুন, বার করার চেষ্টা করুন। জানি না শেয়ারটা কে, কিন্তু আমি বুঝতেই পারছি না। সুখবিলাস বাবু দারুণভাবে সাড়া পাচ্ছেন। পরশুদিন তো আমরা কালীবাড়িতে কর্মী সভা করেছি, গতকাল উনি সাতগুড়ি বাড়িতে ছিলেন। আমাদের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কংগ্রেস, সিপিএম, সংযুক্ত মোর্চার সমস্ত শরিকরা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নেমে গেছে। খুব সংক্ষেপে বলি, গত বছর আমরা 5,500 ভোটে জয়ী হয়েছিলাম, সুখবিলাসবাবু জিতেছিলেন, মানে জোটের প্রার্থী জিতেছিল। এবার বলছি সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী গতবারের থেকে ডাবল মার্জিনে জিতবেন। যে সমস্ত অপপ্রচার ওনাকে নিয়ে হচ্ছে এগুলো নির্বাচনের ইস্যু নয়, সাময়িকভাবে ওনাকে প্রতিহত করার চেষ্টা হচ্ছে বা আমাদেরকে একটুখানি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। দারুণভাবে দারুণটা দেখছেন, যারা শেয়ার করছিল, কি সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু লেখালেখি করছিল, বন্ধ হয়ে যাবে, সমস্ত বন্ধ হয়ে যাবে। এই যে আজকের সময় পর্যন্ত আমাদের জলপাইগুড়ি জেলার জাতীয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এই ঘরটাতে কয়েক ঘন্টা আগে মিটিং করেছি যৌথভাবে। পিনাকি সেনগুপ্ত যে বক্তব্য বলে গেছেন, নির্মলবাবু যে কথা বলেছেন, সেখানে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যে কথা বলেছেন, তার মধ্যে ওই কাগজে কবে কোথায় কোন ওয়ার্ডে কোন অফিসটা খোলে নেই সেরকম কোনো বার্তা পাওয়া যায়নি। আমাদের অভিজ্ঞতা জলপাইগুড়ি জেলার প্রতিটি ব্লকে ব্লকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজটা চলছে। আসলে গায়ে জ্বালা ধরছে অন্য জায়গায়, গায়ে জ্বালা ধরছে বিজেপি এবং তৃণমূলের, আপনাদের না। আপনারা করে খাচ্ছেন, আপনারা সাংবাদিকতা করছেন, আপনাদের কি আছে? আপনাদের কর্তা ইচ্ছা কর্ম করতে হবে, করবেন, ঠিক আছে। ওদের গায়ে জ্বালা ধরার কারণ হচ্ছে ব্রিগেডটা এত বড় কেন হয়ে গেল? কি দরকার ছিল এত বড় ব্রিগেড হওয়ার? কি দরকার ছিল কংগ্রেসের সাথে বামপন্থীদের এত মাখামাখি? কি দরকার ছিল? পশ্চিমবাংলার সংখ্যালঘু অংশের মানুষ থেকে শুরু করে অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে যেই অংশের মানুষ সবচেয়ে তলাকার মানুষ, একদম নিচের স্তরের আছে, একেবারে এসসি, এসটি, ওবিসি, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, দরিদ্র খ্রিস্টান, দরিদ্র মুসলমান, এই যে অংশগুলো দরিদ্র, এই দারিদ্রতার কবলে পড়া মানুষগুলোর প্রতিনিধিরা হচ্ছে নতুন দল কয়েকদিন আগে তৈরি করেছেন। 8টা 9টা
সামাজিক সংগঠনকে নিয়ে তাদের একটা দল তৈরি হয়েছে। দলটার নাম হয়েছে আইএসএফ। এই আইএসএফ মানে হচ্ছে একটা কি বলবো ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠন, ধর্মীয় মৌলবাদী রাজনৈতিক দল। এই প্রচারটাও করবার চেষ্টা হচ্ছে আরএসএস এর পক্ষ থেকে। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भिडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर एसएन दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्। सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। अलीपुरद्वार में काफी संख्या में सुतली बम बरामद, बम निरोधक दस्ते ने बमों को किया निष्क्रिय। अलीपुरद्वार 2 नंबर ब्लॉक के चोपड़ा पाड़ 1 नंबर ग्राम पंचायत इलाके में गुरुवार को काफी संख्या में सुतली बम बरामद किए जाने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार आज सुबह स्थानीय लोग गाय चराने खाली मैदान में गए थे, तभी उन्होंने वहां से काफी संख्या में सुतली बम पड़ा देखा। विधानसभा चुनाव से पूर्व बम मिलने की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने आनन फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी। अलीपुरद्वार जिला पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर हालतों का जायजा लिया। गौरतलब है कि धारहाट बाजार कूच बिहार और अलीपुरद्वार की सीमा पर है। मौके पर मौजूद चापरेर पार 1 नंबर ग्राम पंचायत के प्रधान प्रकाश दास ने कहा कि इलाके में बम मिलने से लोग घबरा गए थे। बम निरोधक दस्ते के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर बमों को डिफ्यूज कर दिया है। एसडीपीओ देवाशीष चक्रवर्ती ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। বলতেছি সঠিক প্রশাসনের কাছে আমার আবেদন, সঠিক তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হোক। আমরা তো আতঙ্কে আছি। আমরা চাই আমাদের এলাকায় শান্তিপূর্ণ, আমার বাজারটা শান্তিপূর্ণভাবে, আমরা লোকাল বাজার কমিটি মেম্বার, আমরা সবাই শান্তিপূর্ণভাবে বাস করতে চাই। চিনির কংগ্রেস, চিনির সিপিএম, চিনির বিজেপি, চিনির টিএমসি যে এই কাজটা যে করছে তাকে আমরা কঠিন সাজা ব্যবস্থা চাচ্ছি। দোষীদের শাস্তি তদন্ত নেওয়া হচ্ছে না, পুলিশ প্রশাসনের এইটা আমাদের আপত্তি। এই ধারেয়ারহাটে ক্ষিতিশ দাসের জমির উপরে ওই দেশীয় সুতলি বোমা, কিছু ক্রুড বোম কিছু পাওয়া গেছে। সেটা আমাদের বোম স্কোয়াডের লোকেরা তাদের জানানো হয়েছে, এরা এসে ওটাকে ডিফিউজ করেছে। দূর থেকে দেখে মনে হলো 4-5টাই আছে। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে, আমরা দেখছি, কেস করছি, দেখছি তদন্ত করে। राज्य में सत्ता परिवर्तन की मांग में भाजपा यमुना निकाली रैली। विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन के आह्वान के साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने गुरुवार को सिलीगुड़ी में रैली निकाली। रैली सिलीगुड़ी शहर के हासमी चौक से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। रैली में विरोध स्वरूप व्हीलचेयर पर नौकरी मांगने वालों का पुतला रखकर शहर में घुमाया गया। रैली हेलकाट रोड, सेवक रोड, विधान रोड होते हुए वापस पार्टी कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष कंचन देवनाथ समेत अन्य नेताओं व भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए थे। जुलूस के जरिए भाजपा युवा मोर्चा की ओर से राज्य में बदलाव का आह्वान किया गया। बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा, स्वास्थ्य लाचार अवस्था में पहुंच गई है, रोजगार नहीं है, लोग पलायन को मजबूर है, हिंसा बढ़ती जा रही है, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। यही कारण है कि वे लोग राज्य में बदलाव का आह्वान कर रहे हैं। শাসন ব্যবস্থা আছে, গত 10 বছরে যে শাসন চলছে কোনো ধরনের উন্নয়ন হয়নি। সাধারণ মানুষের যে ধরনের পরিস্থিতি আছে, যে অবস্থা আছে, কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা যেগুলো সাধারণ মানুষের উন্নয়নের প্রকল্পগুলো আছে সেগুলো মানুষের কাছে যায়নি। কেন? এখানকার সত্তা শাসন তার কাটমানি পায়নি। সেই অবস্থাতে এখানকার সাধারণ জনগণ মানুষ, এখানকার মহিলা সুরক্ষা, এই সমস্ত ব্যবস্থা গণতন্ত্রের হত্যাকারী সরকার, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের সত্তা, পশ্চিমবঙ্গের শাসন আজকে ভিল চেয়ারে আছে। সেটা নিয়ে আমাদের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার যুবা মোর্চার কর্মসূচি আজকে রয়েছে। তার মধ্যে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন শঙ্করদা, আমি স্বয়ং, আমাদের জেলা নেতৃত্ব আছে। এই কর্মসূচি মুখ্যত শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা যুবা মোর্চার নেতৃত্বে হচ্ছে। আমরা পরিষ্কার বলছি, রাজ্যের যে আজকের রাজকীয় যে পরিস্থিতি আছে, সে পরিস্থিতি আজকে একেবারে পুরো রাজ্যের সমস্ত শাসনতন্ত্র পঙ্গু হয়ে দাঁড়িয়েছে। শাসনের যে প্রশাসন আছে, যে প্রশাসন পুরোপুরি সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সত্তার দলদাস হিসাবে কাজ করছে। সম্পূর্ণ রাজ্যের মধ্যে পঙ্গু অবস্থা রাজ্যের হয়েছে। তার জন্য আমরা হুইলচেয়ার নিয়ে আমাদের বার্তা জনগণের কাছে রাখার চেষ্টা করছি যে অবস্থা এইটা আছে, এটার বদল চাই, পরিবর্তন চাই, আর তার জন্য বিজেপিকে আনতে হবে। আর তাই আমরা সমস্ত জনগণের কাছে ভোট চাওয়ার জন্য আজকে মিছিলে বেরিয়েছি। इटहर में कांग्रेस के दिग्गज नेता तथा करीब 6000 समर्थक कांग्रेस पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल। उत्तर दिनाजपुर जिले के 9 विधानसभा केंद्रों में 22 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, लेकिन इसके पहले जिले के इटहर में तृणमूल कांग्रेस को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अब्बास सत्तार समेत करीब 6000 कांग्रेसी समर्थक अपनी पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए।
इधर विधानसभा की तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी तथा अंचल तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख मुशर्रफ हुसैन ने कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए सभी लोगों को पार्टी का झंडा देकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इन समर्थकों के टीएमसी में शामिल होने से अब उनकी जीत निश्चित हो गई है। दूसरी ओर कांग्रेसी नेता अब्दुस सत्तार ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य का काफी विकास हुआ है और राज्य में सिर्फ ममता बनर्जी विकास कर सकती है, इसके लिए वह कांग्रेस पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए हैं। আজকে আমাদের ইটাহারে জাতীয় কংগ্রেসের বড় লিডার আমাদের সমাজসেবী আব্দুস সাত্তার, উনি কংগ্রেসে সদ্য জয়েন করেছিলেন। উনি আমাদের আজকে এই দুর্লভপুর অঞ্চলের নন্দনগ্রামের এই বাজারে উনি সদল বলে ওনার কর্মী সমর্থক সকলকে সঙ্গে নিয়ে আজকে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করছেন। ওনার বক্তব্য একটাই যে বিজেপিকে হাঁটাতে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মমতা ব্যানার্জিকে জেতাতেই হবে, এই লক্ষ্যে উনি আব্দুস সাত্তার আজকে দলবল নিয়ে আজকে আমাদের দলে মার্চ করবেন। কয়েক হাজার জন আছেন, আজকে কিছু জন জয়েন করছেন, বাকি সমস্ত অঞ্চলে ওনাদের কর্মী সমর্থক কংগ্রেসের ছিল, তারা সকলে মিলে আজকে ওই কন্টিনিউয়াসলি প্রতিটা অঞ্চলে জয়েন করবেন। আজকে একটা বড় সংখ্যা আপনারা দেখবেন, বড় মিছিল করে কয়েক হাজার লোকজন নিয়ে আজকে কংগ্রেস থেকে সবাই আমাদের দলে যোগদান করবেন। टीएमसी उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा को है जीत की उम्मीद। विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने में जुट गए हैं। तृणमूल कांग्रेस समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार जोरों शोरों से चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। इसी क्रम में सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के तृणमूल उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा गुरुवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के 29 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। आज सुबह वे अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार पर निकल पड़े। वे घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं तथा राज्य की तृणमूल सरकार के पिछले 10 वर्षों के विकास कार्यों को हवाला देते हुए तीसरी बार पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाने का आह्वान कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों से बातचीत में टीएमसी उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें लोगों से जबरदस्त रेस्पॉन्स और समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा तृणमूल की सरकार ने राज्यवासियों के विकास के लिए काफी काम किया है, कोरोना काल में भी तृणमूल के लोगों के साथ खड़े रहे। मिश्रा ने विधानसभा चुनाव में तृणमूल की जीत की उम्मीद जताई। तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र को उत्तर दिनाजपुर जिले में किया गया प्रकाशित। एक दिन पहले ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र को प्रकाशित किया है। इस घोषणा पत्र में राज्यवासियों के विकास को लेकर विभिन्न घोषणाएं की गई है। इस घोषणा पत्र को आज उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज शहर के सुपरमार्केट स्थित तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेता संदीप विश्वास ने घोषणा पत्र को प्रकाशित किया। घोषणा पत्र प्रकाशित करने के अवसर पर उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद की सभाधिपति कविता बर्मन, तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख संदीप विश्वास, रायगंज विधानसभा क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर अरिंदम सरकार, रायगंज शहर के तृणमूल कांग्रेस सभापति प्रियतोष मुखर्जी सहित तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेता उपस्थित। तथा राज्येर उन्नयनेर कांडारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय गतकाल आमादेर दलेर पक्ष थेके निर्वाचनी इस्ताहार प्रकाश करेছিলেন। আপনারা জানেন এই নির্বাচনী ইস্তাহারের মধ্যে দিয়ে গ্রাম বাংলার শুধু মানুষের নয়, গোটা রাজ্যের পাহাড় থেকে জঙ্গলমহল থেকে সাগর সমস্ত শ্রেণীর মানুষের জন্য যিনি ইস্তাহারে ঘোষণা করেছেন, কৃষিজীবী মানুষ, কলে কারখানায় যারা কাজ করেন, সাধারণ মানুষ, মেহনতি মানুষ, তপশিলি জাতি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ, প্রতিটি শ্রেণীর মানুষের জন্য যিনি ভাবনা চিন্তা সম্বলিত একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেছেন, তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দলের নাম তৃণমূল কংগ্রেস। আমাদেরই দল একমাত্র যে আমরা পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত করতে পেরেছি, আমরা নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করতে পেরেছি, বাংলার মানুষকে 10 বছর উন্নয়নের জায়গায় আমরা দরজায় দরজায় উন্নয়নকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। আজকে তারই হাত ধরে আপনারা জানবেন স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড তিনি প্রস্তাব রেখেছেন যে 10 লক্ষ টাকা লিমিট পর্যন্ত মাত্র 4% সুদে গার্জিয়ানকে গ্র্যান্টার করে নয়, রাজ্য সরকার নিজে গ্র্যান্টার থেকে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড দেবেন ছাত্রছাত্রী সমাজকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য। কত বড় ঘোষণা, আমরা ভাবতেও পারি না।
आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।